देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1 ତାତିରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡିର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍କେ ଜେନାମଣି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ରାତି ବା 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 2 ଏସ୍ସିବି ଓପିଡିରେ ମେରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓପିଡିରେ ଲାଗୁ ହେବ ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କରି ତା'ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇ ଓପିଡିକୁ ଆସିପାରିବେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରାତିରୁ ଆସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମେ 9 ତାରିଖରୁ ଏସ୍ସିବି ଓପିଡି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମେ 10 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରୋଗୀ ଦେଖା। ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ରୋଗୀ ବା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ www.iswasthya.odisha.gov.in କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 3 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅସୁସ୍ଥ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଅସୁସ୍ଥ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ହରାଉଥିବା ମୂଳ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦରମାର 15%କୁ ରିସ୍କ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଡସିପ୍ ଭତ୍ତା ଭାବେ ଦେବାକୁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଗ୍ରେଡ୍ 1 ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିପଜ୍ଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଆଘାତ ଓ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ସ୍ଥାୟୀ ବା ଆଂଶିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେବେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷତିପୂରଣ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। କର୍ମଚାରୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅଧିନିୟମ 1923 କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଅଧିନିୟମ 1948 ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 4 ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଜଗିବ ଦିଶା। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ସହ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଦିଶା ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟୁ ସେଭ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍। ରାମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପାଣିକୋଇଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 140 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ଲମ୍ବା ରାଜପଥର 21ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉନ୍ନତମାନର କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜାଯିବା ସହ ସିଗ୍ନାଲ ଟାୱାର ଲଗାଯାଇଛି ଯାହା ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଧରିବ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର 3 ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଟୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ ପରେ ଗୋଢ଼ନ୍ତରା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାରୁ ପ୍ରବେଶ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ରୂପସା, ଛତିଶଗଡ଼ ପଟୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ନିକଟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। କେବଳ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସୀମାରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିର ଗତିବିଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇପାରିବ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ତତଲା କଢ଼େଇରେ ସିଝୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏଁ ତାତିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ମେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କାଲି ବି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧରେ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ 45 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଓ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ନମ୍ବର 6 ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରାଜୁ ସ୍ଥଳ ସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ। ସ୍ଥଳ ସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ହେବେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ବିଏସ୍ ରାଜୁ। ମେ 1 ତାରିଖରେ ସେ ସ୍ଥଳ ସେନାର ଉପମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। କାଲି ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ବିଜାପୁର ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ବିଏସ୍ ରାଜୁ 1984 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ଜାଠ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏଲ୍ଏସି ବିବାଦ ସମୟରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ବିଏସ୍ ରାଜୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅପରେସନ ପରାକ୍ରମ ବେଳେ ସେ ନିଜ ବାଟାଲିୟନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷର ସେନା କ୍ୟାରିୟରରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ବିଏସ୍ ରାଜୁ ଅନେକ ପଦପଦବୀରେ କାମ କରିବାର ନଜିର ରହିଛି। ନମ୍ବର 7 ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 34ଟି ନୂଆ ଅଦାଲତ। ରାଜ୍ୟରେ 34ଟି ନୂଆ ଅଦାଲତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଏହିସବୁ ଅଦାଲତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 21.26 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସେସନ ଅଦାଲତ ପାଇଁ 5.20 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସିଭିଲ ଜଜ୍ ଅଦାଲତ ସିନିୟର ଡିଭିଜନ ପାଇଁ 3.60 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସିଭିଲ ଜଜ୍ ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଦାଲତ ପାଇଁ
6.30 कोटी टंका मंजूर होईछि। नंबर 8 सुन और रूपर दाम पुणी बढ़िला। देशर राजधानी दिल्ली रे पुणी थरे महंगा होईछि सुन और रूपर दाम। काली सुनर दाम 605 टंका बढ़िछि। फଳରେ 10 ग्राम सुनर दाम 51,627 टंका रे पहुंची जाईछि। पूर्वरु 10 ग्राम सुनर दाम दिल्ली रे 51,022 टंका थिला। दिल्ली रे रूपर भाव मध्य बढ़िछि। काली 1 केजी रूपर दाम 1596 टंका महंगा होईछि। फଳରେ गोटिए केजी रूपर दाम आज राजधानी रे 65,207 टंका रे बिक्री हेउछि। पूर्वरु यह केजी प्रति 63,611 टंका रे बिक्री हेउथिला। नंबर 9 आईपीएस स्तर रे बड़ अदड़ बदल बदलिले कटक भुवनेश्वर डीसीपी। आईपीएस स्तर रे बड़ धरणर अदड़ बदल करिसंती राज्य सरकार। एही प्रक्रिया रे बदलिसंती कटक और भुवनेश्वर डीसीपी। कटक डीसीपी थिबा प्रतीक सिंह को भुवनेश्वर डीसीपी भावे नियुक्त कर जाइछि। ब्रह्मपुर एसपी पिनाक मिश्र को कटक डीसीपी भावे बदली कर जाइछि। भुवनेश्वर डीसीपी थिबा उमाशंकर दास को ट्विन सिटी रो अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर भावे नुआ दायित्व दिया जाइछि। स्पेशल डीजी मनोज छाबरा को जेल विभाग डीजी भावे बदली कर जाइछि। जेल विभाग डीजी संतोष कुमार उपाध्याय को अग्निशम सेवा और होमगार्ड्स डीजी भावे नुआ नियुक्ति दिया जाइछि। क्राइमब्रांच अतिरिक्त डीजी संजीव कुमार पंडा को गोइंदा निर्देशक भावे बदली कर जाइछि। एबे परिवहन कमिश्नर थिबा अरुण बोथरा को क्राइमब्रांच अतिरिक्त डीजी भावे नुआ नियुक्ति मिलिछि। तेबे परिवहन कमिश्नर भावे से अतिरिक्त दायित्व मध्य तुलेइबे। ट्विन सिटी अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर थिबा नीति शेखर को पश्चिमांचल रेंज डीआईजी भावे राउरकेला को बदली कर जाइछि। नंबर 10 सुंदरगढ़ मेडिकल कॉलेज को मिलिलानी अनुमति पत्र। सुंदरगढ़ रे प्रतिष्ठा हेबाकु थिबा मेडिकल कॉलेज को आरंभरू झटका लागिछि। आवश्यक भित्तिभूमि अध्यापक और अन्य आनुषंगिक सुविधा नथिबा दर्शाई जातीय मेडिकल कमिशन 2022-23 शिक्षा वर्ष पई अनुमति पत्र बा एलओआई देबाकू मना करि दैछंती। मेडिकल कॉलेज पई जो भित्तिभूमिर आवश्यकता रहिछि तहिरे पुड़ा अभाव रहिथिबा दर्शा जाइछि। जहा फଳରେ चलित शिक्षा वर्ष रे छात्र छात्री नामलेखा अनिश्चितता भीतर को ठेली होई जाइछि। मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा पई जो अभाव रहिछि ताहाको पूरण करी आसंता मे 10 तारिख सुधा एनएमसी को जणाइबाकू कह जाइछि। नंबर 11 गुजरात निर्वाचन पई बिगुल फुंकिले नड्डा। चलित वर्ष अनुष्ठित हेबाकु थिबा गुजरात विधानसभा पई काली विधिवत भावे बिगुली फुंकिचंती बीजेपी रो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। एथिसह से कांग्रेस को समालोचना करी यह केवल गोटे भाई भौणीर दल बोली कही कटाक्ष करिसंती। अहमदाबाद रे थिबा कन्वेंशन सेंटर रे बीजेपी कार्यकर्ता को संबोधन करी नड्डा कहिसंती सबु आंचलिक दल एबे पारिवारिक पार्टी रे परिणत होई गलेनी। आम देश में अन्य कौनसी जातीय राजनीतिक दल नाहांती। बीजेपी केवल एकमात्र जातीय राजनीतिक दल भावे काम करुछि। कांग्रेस आउ जातीय राजनीतिक दल होई नाही। सेमाने एबे केवल 2टी राज्य रे रहिसंती। एही 2 राज्य मध्य बदली जीवो। भारतीय जातीय कांग्रेस पार्टी आउ भारतीय नुहे किंबा जातीय पार्टी नुहे। यह केवल गोटे भाई भौणीर दल। नंबर 12 चिंता बढ़िला कोयला संकट 42 यात्रीवाही ट्रेन बातिल। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जोगु समग्र देश में बिजुली चाहिदा बढ़ी। बिजुली चाहिदा बढ़ुवा बेले उत्पादन पर कोयलार अभाव देखा मिली। कोयला संकट जोगु बिजुली अभाव देखाଯିबार आशंका रही। यहाकु दृष्टि रखी भारत सरकार बड़ पदक्षेप नहीं। कोयला बोझई ट्रेन बा मालवाही ट्रेन गति को त्वरान्वित करने को भारतीय रेलवाई 42 यात्रीवाही ट्रेन को बातिल करी। आगक कोयला चालाण को त्वरान्वित करने आहरी अनेक यात्रीवाही ट्रेन को बातिल कर सूचना देइछि। रेलवाई पक्षरु समग्र देश में कोयला संकट को दूर करने मोट 670 मेल बा एक्सप्रेस ट्रेन को बातिल कर योजना रही। मे 24 जाए एपरी नियम लागू हेबो। नंबर 13 कोविड नियम मानिबा को परामर्श देले जनस्वास्थ्य निर्देशक। राज्य में कोविड स्थिति नहीं जनस्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर निरंजन मिश्र प्रतिक्रिया रखिछंती। से कहिछंती एबे में पांडेमिसिटी रु एंडेमिसिटी आड़ को जाउछे। यह भितर एमिति गोटे स्पाइक आसीबो। एथिबे आतंकित हेबार नाही। ए भाइरस कुआडे जीवनी किंतु तार रोग करिबा क्षमता कमी जीवो। जदि संख्या बढ़िबो यार मुकाबिला प्रस्तुति पई हमको विशेष असुविधा हेबनी। कारण आमर अभिज्ञता अच्छी भित्तिभूमि अच्छी औषध अच्छी। एवं केंद्र सरकार गाइडलाइन होउछि एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग अर्थात जोठी बढ़ुछि सेठी पदक्षेप नियो। तेणु सही आधार में पदक्षेप नियाजिबो। नंबर 14 गोष्ठी संघर्ष पर जारी है कर्फ्यू शिवसेनार कार्यानुष्ठान। खलिस्तान विरोधी शोभायात्रा बेले घटिथिबा गोष्ठी संघर्ष जोगु पंजाबर पटियाला अशांत होई उठिछि। स्थिति को देखि प्रशासन पक्षरु स्थानीय अंचल में कर्फ्यू लागू कर जाइछि। सेहिपरि विभिन्न स्थान में पुलिस फ्लाग मार्च करने सह चेकिंग करुछि। काली सकाळे शिवसेना पक्षरु पटियाला रे शोभायात्रा आयोजन कर जाइथिला। याको गोटे गोष्ठी विरोध करिबारु पटियालार काड़ी माता मंदिर निकट में संघर्ष देखा मिलिथिला। दुई गोष्ठी परस्पर को पत्थरमाड़ करने सह खंडा द्वारा आक्रमण करथिले। स्थिति को नियंत्रण करने को जाई पुलिस मध्य फांका
गुड़ी चालना करिथिला। पंजाब शिवसेनार कार्यकारी सभापति हरीश सिंगलांक नेतृत्व में ही पुलिसर बिना अनुमति खलिस्तानी विरोधी शोभायात्रा आयोजन कराଯାଇथिला। शोभायात्रा चलिथिबा बेले गोटे सिख गोष्ठी यहाको विरोध करिथिला। याकु नै शिवसेना कर्मी सह सेमानकर मारपिट होइथिला। नंबर 15 आईएफएस अभय पाठकों संपत्ति जबत कला ईडी। गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही घनिष्ठ तथा पूर्वतन आईएफएस अधिकारी अभयकांत पाठकों 29.83 लाख टंकार संपत्ति को प्रवर्तन निर्देशालय जबत करिछि। राज्य में वृक्षरोपण वनीकरण कार्यक्रम में दुर्नीति होइतिबा नै पूर्वतन अतिरिक्त पीसीसीएफ श्री पाठकों विरुद्ध में विजिलेंस तदंत जारी रही। ईडी पक्षर मिलिथिबा सूचना अनुसार प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अंतर्गत पूर्वतन आईएफएस अधिकारी श्री पाठकों आय बहिर्भूत संपत्ति उपर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। एही आय बहिर्भूत संपत्तिर परिमाण 29.83 लाख टंका हेबो। प्रवर्तन निर्देशालय एही संपत्ति को जबत करिबा परे श्री पाठक एसबुर उपयोग करि परिबे, किंतु एहाको बिक्री किंबा काहारी को हस्तांतर करि परिबे नाही। नंबर 16 दुर्नीति रे बुड़ीछि राज्यर सबु ब्लॉक, स्वतंत्र ऑडिट दाबी कला बीजेपी। दीर्घ 22 वर्ष धरी क्षमतारे थिबा बीजेडी सरकार शासन रे दुर्नीति सबु सीमा लंघन करिछि। बीजेडी नेता मंत्री मानक सह प्रशासनिक अधिकारी मधुचंद्रिका जोगु ब्लॉक गुड़िकरे व्यापक दुर्नीति हेउछि। बीजेडी ही एही दुर्नीतिग्रस्तों को सुरक्षा देउछि बोली बीजेपी अभियोग करिबा सह 2000 मसीहारू राज्यर समस्त ब्लॉक और अन्य विभाग गुड़िकर स्वतंत्र ऑडिट करने दाबी करिछि। काली राज्य बीजेपी कार्यालय पूर्वतन सांसद तथा बीजेपी राज्य उपसभापति बड़भद्र माझी एक सांबादिक सम्मेलन में कहिसेंति जे दुर्नीति रे सीधासळख भावे लिप्त थिबा सरकारी अधिकारी मानकु संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने सहित परवर्ती समय रे निज दलीय कार्य पई शासक बीजेडी व्यवहार करुछि। नंबर 17 देश में आउ 3377 कोविड आक्रांत चिन्हट। देश में बढ़ुची कोविड संक्रमण। लगातार किछि दिन हेब देश में धीरे धीरे संक्रमण वृद्धि पाउथिबा देखिबाकू मिलुछि। गत 24 घंटा मध्य सारा देशरू 3377 कोविड आक्रांत चिन्हट होइथिबा बेले कोविड रू गोटे दिन में 2496 जन संक्रमित सुस्थ होइछंती। सेहिपरि गत 24 घंटा 60 जनक जीवन नेइछि कोविड। राज्य में गत 24 घंटा मध्य आउ 10 कोविड आक्रांत चिन्हट होइछंती। नंबर 18 टीसीएस इन्फोसिस रे वर्ष 30,000 चाकरी। देशर विभिन्न बृहत्तम सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस और इन्फोसिस रे चलित वर्ष प्राय 90,000 नुआ नियुक्ति प्रदान करिवार संभावना रही। यह मध्यरु टीसीएस 40,000 और इन्फोसिस 50,000 नियुक्ति देबाको लक्ष्य रखिछंती। केवल एही दुई कंपनी नुहंती, अन्य आईटी कंपनी माने भी हजार हजार नियुक्ति देबार संभावना रही। इन्फोसिस पक्षरु कह जायछि जे कंपनी भारत और अंतर्जातीय स्तर में मोट 85,000 नियुक्ति प्रदान करिथिला। चलित वर्ष प्राय 50,000 फ्रेशर मानकु नियुक्ति दियाजिबो। तेबे यह एक प्रारंभिक अटकल, प्रकृत संख्या कम बेसी होई पारे बोली कंपनीर मुख्य अर्थ अधिकारी नीलंजन राय कहिसंती। टीसीएस गत आर्थिक वर्ष अर्थात 2021-22 रे प्राय 1 लाख कैंपस नियुक्ति प्रदान करिथिला। नंबर 19 पाकिस्तान पटु आसिथिबा चीन निर्मित ड्रोन को खसेला बीएसएफ। पाकिस्तान पटु आसिथिबा एक मेड इन चाइना ड्रोन को अमृतसर थिबा सीमांतवर्ती गाँ धनोई कलांठारे गुड़ी करी खसई देछि सीमा सुरक्षा बल बा बीएसएफ। क्यों कारण पई ड्रोनटी आसिथिला से नै तदंत जारी रहिछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार गत राति 1 घंटा 15 मिनिट समय सीमार पहरा देउथिबा बीएसएफ जवान माने आकाशरू आसुथिबा एक शब्द शुणिबाकू पाइथिले। उपरको देखिबा परे एक ड्रोन उड़ुथिबा सेमाने देखिबाकू पाइथिले। एही ड्रोन संदिग्ध अवस्थारू उड़ुथिबारु ताहाकू तुरंत गुड़ी करी खसई दिया जाइथिला। ड्रोनटी खसी पड़िबा परे एक तलाशी अभियान चढ़ाई ड्रोन को ठाब करा जाइथिला और स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसी मानकू खबर दिया जाइथिला। जांचरू उक्त ड्रोनटी एक चीन निर्मित DJI मैट्रिक्स 3 ड्रोन बोली जना पड़िछि। नंबर 20 हिमालय पार्वत्य अंचल माउंटेड गन सिस्टम लगेब सेना। हिमालय पार्वत्य अंचल निजर क्षमता को बढ़ाइबाकू भारतीय सेना केतेक पदक्षेप नेबाकू निष्पत्ति नेइछि। एसबु अंचल 105 mm माउंटेड गन सिस्टम लगेबाकू सेना निष्पत्ति नेइछि। एसबु गन सिस्टम क्रय पई सेना पक्षरु शुक्रवार दिन एक रिक्वेस्ट फॉर इनफॉरमेशन प्रकाश पाइछि। एहार परवर्ती पर्यायर सेना पक्षरु टेंडर आह्वान कराजिबो। भारतीय सेना पूर्वरु ट्विस्ट गन सिस्टम रो व्यवहार करुथिला, जो गुड़िक माउंटेड गन सिस्टम तुलना रे लंबा ओजनिया थिला। फଳରେ एगुड़िक हिमालयर उच्च तथा दुर्गम पार्वत्य अंचल को नेबा कष्टकर हेउथिला। माउंटेड गन सिस्टम को भारतीय सेना मुख्यतः चीन को लागिथिबा सीमारे लगेबार संभावना रहिछि। या फଳରେ पार्वत्य युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना को सहायता मिल पारिबो। भारतीय कंपनी मानक द्वारा निर्मित माउंटेड गन सिस्टम खरीद पई सेनार योजना रहिछि। नंबर 21 सांघाई स्थिति संगीन, भୟରେ देश छाड़ुछंती लोके।
चीन को कोलबल कलानी कोविड महामारी। कोविड जोगु चीन आर्थिक राजधानी कहुथुवा सांघाई अधिक प्रभावित होइछि। बिगिड़ाकू लगिलानी एठाकर स्थिति। एठारे कोविड संक्रमण मामला बेकाबू हो पड़ी। एथिजोगु एठारे हाहाकार परिस्थिति सृष्टि होइछि। संक्रमण रोकिबा पई सरकार एठारे कड़ा लॉकडाउन मध्ये लगेइछन्ति। देश में दैनिक संक्रमण जेतिकी चिन्हट हेउछन्ति सेतिमध्यरु अधिकांश आक्रांत सांघाईरु चिन्हट हेउछन्ति। देश में बढ़ुथुवा संक्रमण को दृष्टि रे रखी बेजिंग 200 कोटी लोकंकर कोविड परीक्षा करने को सरकार निर्देश देइछन्ति। स्थिति एपरी होइछि जे लोके भयरे एबे देश छाड़ी चली जिबाको बाध्य हेउछन्ति। सेहीपरि एठारे थिबा लोके खाइबाको मध्य पाउनाहांति। देशर आर्थिक व्यवस्था एक प्रकार दोहली जाइछि। नंबर 22 जिग्नेश मेवानी को मिला जामिन। आसाम पुलिस द्वारा गिरफ होइतिबा गुजरात विधायक जिग्नेश मेवानी को शेष में जामिन मिली। जड़े महिला पुलिस कर्मचारी को माड़ मारिबा अभियोग से गिरफ होइथिले। तेबे काली आसामर गोटे कोर्ट तांको जामिन देइछन्ति। प्रथमे मेवानी को प्रधानमंत्री विरोध में ट्वीट करिथिबारु आसाम पुलिस गिरफ करिथिला। एही मामलारे तांको एप्रिल 25 रे जामिन मिलिथिला। तेबे जामिन मिलिबार मात्र किछि मिनिट मध्यरे तांको महिला पुलिस कर्मचारी को माड़ मारिबा मामलारे पुणी गिरफ कर जाइथिला। हेले काली शेषरे तांको एही मामलारे मध्य जामिन मिलिछि। नंबर 23 नुआ चेहरा को नहीं छत्तीसगढ़ में निर्वाचन लड़ब बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा निर्वाचन पर प्रस्तुति आरंभ करिछि। दल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्वतन मुख्यमंत्री रमण सिंह समेत उभय राज्यर वरिष्ठ नेतांक सह आलोचना करिछि। कुहाଯାଉଛି जे बीजेपी मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में किछि मंत्री को बदलई पारे। एठारे 50% रु अधिक भोट पाई दल संख्यागरिष्ठता सह क्षमता बजाय रखिबाको चेष्टा करुछि। एथि सहित पड़ोशी राज्य छत्तीसगढ़ में एक नूतन मुख्यमंत्री चेहरा को नहीं निर्वाचन मैदान को ओह्लैबाकू बीजेपी लक्ष्य रखिछि। बैठक में सामिल होइतिबा जणे वरिष्ठ बीजेपी नेता निज नाम गोपन रखी कहिसंति जे मध्य प्रदेश में किछि नूतन चेहरा को राज्य कैबिनेट रे अंतर्भुक्त कराजिबार संभावना रहिछि। नंबर 24 15 जुलाई रे आसिबो मिताली राजंक बायोपिक शाबाश मिठू। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अधिनायक मिताली राजंक बायोपिक शाबाश मिठू चलित वर्ष 15 जुलाई रे रिलीज हेबो। मिताली निजे ट्वीट करी एही फिल्मर रिलीज तारीख खुलासा करिसंति। एही चलचित्र रे अभिनेत्री तपस्वी पन्नू मितालीक भूमिका रे देखिबाको मिलिबे। सेहीपरि अनुभूति संपन्न भारतीय द्रुत बोलर झूलन गोस्वामीक एक बायोपिक चलित वर्ष 13 डिसेम्बर रे रिलीज अपेक्षा रे अछि। तांको परे हेउथुबा बायोपिक रे अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को मुख्य भूमिका रे देखिबाको मिलिबो। नंबर 25 जातिसंघ मुख्यंक गस्त बेले कीब्रे प्रचंड आक्रमण कला रूसीय सेना। गुरुवार संध्यारे जातिसंघर महासचिव आंटोनियो गुटेरसंक गस्त बेले रूस सेना यूक्रेन राजधानी कीब्रे प्रचंड आक्रमण करिथिला। एप्रिल मध्यभागରୁ कीब्रे एभଳି प्रचंड बोम विस्फोरण होई नथिबा कथा मेयर एवं संवाद सरबराह संस्था एएफपी र प्रतिनिधि कहिसंती। कीब्र केन्द्रांचल अंतर्गत पश्चिम प्रांत को प्रभावित करिथिबा उक्त विस्फोरण रे केही मृताहत होइथिबा सूचना तुरंत मिली पारि नाही। किंतु सेमाने निरापद थिबा कथा जातिसंघ मुख्यंक जणे घनिष्ठ सहयोगी सांबादिक मानकु सुनिश्चित करी वार्ता देइछंती। कीव मेयर भिताली क्वित्स्को टेलीग्राम रे करिथिबा पोस्ट रे कहिसंती सेवचेंकोव्स्की जिल्ला रे 2टी बोम विस्फोरण घटिछि। मृताहतंक संपर्क रे सविशेष विवरणी दियाजिबो। नंबर 26 माइंड गेम नाम रे मुक्तिलाभ करिबो पार्सल बोमर कहानी। बलांगीर जिला पाटणगढ़ बहु चर्चित पार्सल बोमा कांड उपर आधारित राजेश टच रिभरंक चलचित्र बहु वाद विवाद मध्य शेष में सेंसर बोर्डर प्रमाण लाभ करिछि। तेबे आरंभरू बुलेट राजा पाटणगढ़ आदि विभिन्न नाम एही चलचित्र पई बछ जाइथिले भी शेष में माइंड गेम ना को सेंसर बोर्ड स्वीकृति देइछि। एथिरे पुंजीलाल मेहर किभड़ी पार्सल बोमा तैयारी करी एक परिवार को उजाड़ी देला तार कहानी वर्णना करा जाइछि। जेहेतु एही सिनेमाटी उभय ओडिया और तेलुगु भाषा रे हेउछि तेणु गोटे दिन में मुक्तिलाभ करने वर्तमान सुधा तारीख स्थिर हो पारि नाही। किंतु यह खूब शीघ्र बड़ पर्दारे देखिबाको मिलिबो बोली यार मुख्य चरित्र रे अभिनय करिथिबा अभिनेता मनोज मिश्र सूचना देइछंती। नंबर 27 रूस आगरे नईले 4 यूरोपीय देश 9 रे यूक्रेन विजय लक्ष्य। रूसर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन धमक आगे यूरोपर 4 देश नईछंती। सेमाने रूस ठारू गैस किनिबा निमंते रूबेल रे अर्थ देबाको राजी होई जाइछंती। रूस रे चालुथुबा रूबेल रे अर्थ जमा करिले ही गैस और तैल दियाजिबो बोली रूस धमक देइथिला। अण बंधुत्वपूर्ण देशगुड़ी को पुतिन गत मासरे एभଳି धमक देइथिले जहा परे 4टी देश नईछंती। यूक्रेन सह युद्ध बेले मध्य रूस यूरोपीय देशगुड़ी को गैस और तैल जोगाण करुथिला। हेले यूरोप देशगुड़ी को रूस विरोध में ठिया हेबारु पुतिन एभଳି धमक देइथिले। रूबेल रे अर्थ पैठ न करिबारु पोलैंड और बुल्गारिया को गैस जोगाण बंद कर देइथिले। नंबर 28 भाई महिंदा को प्रधानमंत्री पदर विदा करेंगे राष्ट्रपति राजपक्ष।
आर्थिक संकट जोगु श्रीलंकार सृष्टि होइतिबा राजनीतिक अस्थिरतार खूब शीघ्र पूर्णछेद पड़िबार संभावना सृष्टि होइछि। देशरे अंतरीण सरकार गठन पई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष को विदा करिबा पई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्ष राजी होइछंती। महिंदा को प्रधानमंत्री पदरु विदा करिबा पई विरोधी दलगुड़िक दाबी करि आसुथिला, हेले विरोधीक एही दाबी को अणदेखा करुथिबा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्ष एबे किंतु एथिरे राजी होइछंती। से निज भाई तथा प्रधानमंत्री राजपक्ष को शासन गादीरु खूब शीघ्र हटेइबे बोली निष्पत्ति नेइछंती। नंबर 29 आईपीएल पंजाब को 20 रन रे हरैला लखनऊ। पुणेर महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम रे खेला जाउथुबा आईपीएल 2022 रो 42तम मैच रे पंजाब को 20 रन रे परास्त करिछि लखनऊ। लखनऊ द्वारा रखा जाइथिबा 154 रन रो लक्ष्य जवाब रे पंजाब 133 रन करि पारिथिला। दल पक्षरु मयंक अग्रवाल 25 और जनी बेयरिस्टो 32 रन करिथिले। एही मैच रे पंजाब टॉस जीति प्रथमे बॉलिंग करिबाको निष्पत्ति नेइथिला। प्रथमे बैटिंग करी लखनऊ क्विंटन डिकॉक 46 और दीपक हुड्डाक 34 रन बड़े निर्धारित 20 ओवर 8 विकेट हरई 153 रन करिथिला। नंबर 30 पदक पक्का कले सिंधु। दुईथर ओलंपिक मेडल जीतिथिबा पीवी सिंधु चलित एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप रो सेमीफाइनल रे प्रवेश करिसंती। एथिसह ई क्रीडा रे से पदक पक्का करिसंती। 2014 मसिया परे से प्रथम थर पई निजर चमत्कार खेल देखै निजर विजय अभिमुखे बाहरिसंती। शुक्रवार से क्वार्टर फाइनल रे चाइनार ही बिंग जियांग को परास्त करिसंती। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।